افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں تقریباً 60 کلومیٹر دور پہاڑوں میں گھری 77 مربع کلومیٹر پر پھیلی یہ دنیا کی اہم ترین ملٹری بیسز میں سے ایک بگرام ایئر بیس ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 1500 میٹرز کی بلندی پر واقع ہے۔ اپنی غیر معمولی دفاعی اور جغرافیائی اہمیت کے باعث بگرام ایئر بیس طویل عرصے تک امریکہ کے لیے انتہائی اہم فوجی مرکز رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نیٹو فورسز اس بیس پر 2 دہائیوں تک قابض رہ چکی ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر ایک بار پھر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ ان کے مطابق چینی ایٹمی تنصیبات پر نظر رکھنا ہے۔ بگرام ایئر بیس امریکہ کے لیے اتنی اہم آخر کیوں ہے؟ کیا چین بھی واقعی اس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کا بھی کیا اس ایئر بیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ اور اس ایئر بیس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم جانتے ہیں۔ بگرام ایئر بیس صوبہ پروان کے تاریخی ضلع بگرام میں موجود ہے۔ یہاں یوں تو موسم زیادہ تر معتدل ہی رہتا ہے، لیکن سردیوں میں برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ اس ایئر بیس کو 1950 کی دہائی میں سوویت یونین کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ بیس امریکہ اور سوویت یونین کی کولڈ وار کے دوران بھی ایک بڑے فوجی اڈے کی حیثیت رکھتی تھی، جس پر کنکریٹ سے بنے 2 رن ویز ہیں۔ بڑا رن وے 3600 میٹر سے بھی زائد طویل ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 46 میٹر ہے۔ یہ رن وے امریکہ کے لاکہیڈ مارٹن C5 سمیت دنیا کے بڑے سے بڑے ملٹری ایئر کرافٹ کی لینڈنگ کے لیے موزوں ہے۔ بگرام ایئر بیس کا دوسرا رن وے تقریباً 3 کلومیٹر لمبا اور 26 میٹر چوڑا ہے۔ اس میں 3 بڑے ہینگرز بھی ہیں۔ بگرام ایئر بیس میں موجود بیرکس اور رہائش گاہیں ایک وقت میں 30,000 سے زائد فوجیوں، کنٹریکٹرز اور دیگر افراد کو پناہ دے سکتی ہیں، جبکہ اس بیس پر ایک ہی وقت میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گاڑیوں کو پارک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بیس پر 50 بیڈز پر مشتمل ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر کے علاوہ 3 آپریشن تھیٹرز اور جدید ڈینٹل کلینک بھی ہے۔ بگرام ایئر بیس پر آئل ڈپوز اور بدنام زمانہ گوانتانامو بے طرز کی ایک جیل بھی بنائی گئی تھی، جس میں ہزاروں قیدیوں کو زیر حراست رکھا جا سکتا تھا۔ یہاں سے کابل ایئرپورٹ تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے اور اس تک رسائی کے لیے ایئر بیس سے 2 مختلف زمینی راستے بنائے گئے ہیں۔ دوستو، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر کوہ ہندوکش پہاڑی سلسلے میں بلند و بالا چوٹیوں کے دامن میں گھرا ضلع بگرام کبھی اسکندر اعظم کی فوجوں کا مرکز بنا اور کبھی یورپی خانہ بدوش قبائل کی سلطنت کوشان کے بادشاہوں نے یہاں اپنا دارالحکومت بسایا، جن کے دور میں اس شہر نے خوب ترقی کی۔ یہاں نہ صرف بدھ خانقاہوں کی گھنٹیاں بجتی رہیں بلکہ 7ویں صدی عیسوی میں خطے کو اسلام کی روشنی نے منور کر دیا۔ قدیم شاہراہ ریشم پر ضلع بگرام روم، ایران، ہندوستان اور چین کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ بھی رہا۔ مورخ ٹرسٹن ہیوز نے اپنی کتاب سینڈ بائی کولڈ بونز ہوم میں لکھا ہے کہ بگرام کا شہر قدیم سپر پاورز کی کئی یلغاروں کا شاہد رہا ہے۔ یہ خطہ محمود غزنوی ہی نہیں بلکہ تیموریوں اور مغلوں کے زیر اثر بھی آیا۔ تاج برطانیہ نے بھی یہاں 3 جنگیں لڑیں اور اسے واضح کامیابی کبھی بھی نہ مل سکی۔ 1979 میں سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو بگرام ایئر بیس سوویت فوجی اڈا بھی بن گئی تھی۔ سوویت کے افغانستان سے رخصت ہونے کے بعد 2001 میں سپر پاور امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تاہم امریکی افواج بگرام ایئر بیس پر جنوری 2002 ہی میں قابض ہو سکی۔ یہ ایئر بیس کئی بار طالبان کے حملوں کا نشانہ بنی، تاہم 2007 میں طالبان نے پہلا خودکش حملہ یہاں کیا، جس کا ٹارگٹ امریکی نائب صدر ڈک چینی تھے۔ حملے میں 23 افراد کی جان گئی تھی۔ 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بیس کا اچانک دورہ کیا تھا۔ بگرام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدور نے اس اڈے کا دورہ کیا، جن میں جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما بھی شامل ہیں۔ جو بائیڈن نے 2011 میں بگرام ایئر بیس کا دورہ کیا تھا، تاہم اس وقت وہ امریکہ کے نائب صدر تھے۔
जुलाई 2021 में जब अमेरिका ने 20 बरस बाद रातों रात बगराम एयरबेस को खाली किया तो तालिबान हुकूमत के कंट्रोल संभालने से पहले ही मकामी अफराद ने चंद घंटे में एयरबेस पर मौजूद अमरीकियों और इत्तेहादियों के बचे कुचे सामान पर खूब हाथ साफ किया। अमेरिका ने अपने कब्जे के दौरान इस बेस पर वसी पैमाने पर तामीरात की थीं। बगराम एयरबेस पर सिर्फ गैर मुल्कियों ने ही कब्जा नहीं जमाए रखा, बल्कि रवां सदी के आगाज़ में ही तालिबान और शमाली इत्तेहाद के दरमियान इस बेस पर कब्जे की जंग चलती रही और एक ही वक्त में इसके एक हिस्से पर तालिबान और दूसरे हिस्से पर शमाली इत्तेहाद का कब्जा था। अमेरिकी क़यादत में नेटो फोर्सेस 2021 में बगराम एयरबेस से चली गईं। ताहम आलमी सतह पर अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए कि अमेरिका को इस बेस की एक बार फिर याद सताने लगी है, जिसकी बड़ी वजह चीन और इसकी तेज़ी से तरक्की करती हुई एटमी ताकत है। अमेरिकी अखबार टेलीग्राफ की 9 जुलाई को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बगराम एयरबेस इस वक्त चीन के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसका सबूत ये है कि 2024 के सैटेलाइट इमेजेस में चीनी फौजियों को इस एयरबेस पर देखा गया है। चीन बगराम एयरबेस का कंट्रोल इसलिए चाहता है क्योंकि ये एयरबेस चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, ये तो एक अखबार का दावा है। बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका को इस बेस की अब आखिर क्यों ज़रूरत है। तो इसका जवाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही दे दिया है। वो कहते हैं कि इस इक़दाम की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन बगराम एयरबेस के करीब ही एक मुकाम पर जौहरी हथियार तैयार कर रहा है और यहाँ से हम सिर्फ 1 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। अमेरिकी सदर का ये दावा कि बेस के करीब ही कहीं चीन की मुबैना जौहरी तजर्बागाह है, तो ये बात पूरी तरह सच नहीं, क्योंकि चीन की एक जौहरी तजर्बागाह इस बेस से तकरीबन 1900 किलोमीटर के फासले पर शमाल मगरबी चीन के इलाके लोपनोर में वाक़या है। ये रास्ता ज़मीनी मुसाफत के एतबार से किसी सूरत में भी 1 घंटे में तय नहीं हो सकता। ताहम अमरीकी जदीद तरीन लड़ाका तैयारा लॉकहीड SR-71 इस फासले को फ़ज़ा में तकरीबन 1 घंटे में तय कर सकता है। दफ़ाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चीन जैसा बड़ा एटमी मुल्क अपने एटमी असासे एक ही जगह पर कभी भी नहीं रखेगा और ना ही वो किसी गैर महफूज जगह पर जौहरी तजर्बागाह बनाएगा। इसलिए ट्रंप का ये दावा भी कमज़ोर दिखाई देता है कि चीन की सबसे बड़ी जौहरी तनसीबात पर नज़र रखना सिर्फ इस बेस से ही आसान होगा। ताहम इसके बावजूद चीन ने अमेरिकी सदर के बयान को इंतहाई संजीदगी से लिया है और वो बगराम एयर बेस पर अमेरिकी दावे को अपने लिए ख़तरे की घंटी समझता है। चीन ने वाज़ेह किया है कि चाइना अफ़गानिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करता है, इसकी सूरत हाल पर भी पूरी नज़र है और वो अमेरिका के अज़ाइम पर भी नज़र रखे हुए है। बगराम एयरबेस की अहमियत की 3 बड़ी वजूहात में से एक तो इसकी लोकेशन है, दूसरा इस पर मौजूद सहूलियात हैं, तो तीसरा इसकी इंटेलिजेंस अहमियत भी मुसल्लमा है, जिससे अमेरिका एक ही वक्त में चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान पर नज़र रख सकता है। अमेरिका बगराम एयरबेस से अफ़गानिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशंस, ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स को कंट्रोल किया करता था। एक वक्त में पूरे जनूबी एशिया में ये अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा था और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर के अमन माहिदे को गलती समझते हुए इस बेस को वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर का कहना है कि वो कई बार वाज़ेह कर चुके कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में बगराम फ़ौजी अड्डा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये जो बाइडेन का इंतहाई गलत फ़ैसला था। हालांकि हकीकत ये है कि तालिबान से अमन माहिदा करके अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज को वापस बुलाने का फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप ही के पहले दौर में हुआ था, जब 29 फरवरी 2020 को अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान के नुमाइंदे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ कतर की मेज़बानी में एक माहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत आने वाले 14 माह में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाना था। इस माहदे में बगराम एयरबेस को अमेरिका के कंट्रोल में रखने का कोई जिक्र नहीं था। दोस्तों, इस बात से कतई नज़र कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में जो कुछ भी हुआ, उन्होंने 21 सितंबर 2025 को यानी अपने हालिया मौजूदा दूसरे दौरे सदारत में अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बगराम एयरबेस वापस न करने पर
पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अफगानिस्तान ने बगराम एयर बेस इसके असल ममारों यानी अमेरिका के हवाले ना की तो उनको बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर की इस दो रुखी को सियासी मुखालफिन ही नहीं बल्कि सियासी मुबस्सरीन ने भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप के तजादात से भरे बयानात में एक ये भी है कि अमेरिका बगराम एयर बेस पर चीन का कब्जा ख़त्म कराने के करीब पहुंच चुका है। हालांकि इस बात के शवाहिद कहीं से भी सामने नहीं आए कि इस बेस पर चीन का कब्जा है या चीन की यहाँ पर मौजूदगी है। इस अहम मामले पर रशिया का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। रूसी हुकूमती तर्जमान का कहना है कि अमेरिका की बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। कुछ गैर मुल्की मुबस्सरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस कर दें, लेकिन कुछ मुबस्सरीन की राय इसके बरअक्स भी है और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी ये बात नुकसानदेह ही होगी अगर अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में इस एयरबेस पर आ गया, और पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है कि वो इस मामले पर न्यूट्रल ही रहे क्योंकि चीन इसका दुख सुख का साथी भी है। अफगानिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबे को सख्ती से रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फ़ौजियों को किसी भी सूरत एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पर दोबारा कदम रखने की इजाज़त वो नहीं देंगे। अमेरिका को बगराम एयरबेस या कोई भी मिलिट्री अड्डा देने की सख्ती से तरदीद अफगान हुकूमत ने की है। अक्सर तजियाकार ये समझते हैं कि तालिबान कैसे उस मुल्क को दोबारा कब्जे की इजाज़त दे सकते हैं जिससे वो 20 बरस तक लड़ते रहे, लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोगों का ख्याल है कि अफ़गानिस्तान चूँकि शदीद माली मसाइल का शिकार है, इसलिए वो माली फ़ायदे के बदले चीन या अमेरिका में से किसी एक को शायद बगराम एयरबेस का कंट्रोल सौंप भी सकता है। अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने का एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि अफ़गानिस्तान अमेरिकी जासूसों को अपने मुल्क में रहने की महदूद तौर पर इजाज़त दे दे और ज़ेर हिरासत अमेरिकी शहरियों को रहा कर दे। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस वापस लेने का बयान भी इसीलिए दे रहे हों ताकि अफगानिस्तान पर एक बड़ी डिमांड का प्रेशर डाला जाए और निस्बतन छोटी बातें इसके बदले अफगानिस्तान से मनवा ली जाएं। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका को अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई भी अड्डा या जगह देना अफगान हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल अमल है और इससे एक बार फिर अफगानिस्तान में खाना जंगी भी छिड़ सकती है। और वैसे भी ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं, चीन, रूस और ईरान भी बिलवास्ता तौर पर इस मामले से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कि अफगानिस्तान अमेरिका को बगराम एयरबेस दे सकता है और क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई बगराम एयरबेस वापस हासिल करना चाहते हैं या वो अफगान तालिबान पर दबाव डालने के लिए ऐसे बयानात दाग रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।